गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th के टॉपिक वेक्टर को करेंगे। तुम्हें पता है फिजिक्स में वेक्टर्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके, क्लास 11th में वेक्टर्स पढ़ाई जाती है और इसका यूज जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे तब तक होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, हम ये बात करेंगे व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज फॉर विच both magnitude and direction is required. Okay, we require both magnitude and direction. Okay, both magnitude and direction is required. For example, if we want to explain displacement, velocity, acceleration, force, for these physical quantity, we require not only magnitude, we require the direction also. Whereas there are some physical quantities in physics for which only magnitude is necessary. Basically, direction is not important for them. For example, when we talk about distance, we talk about speed, or we talk about work. Okay, so these are the scalar quantities. They have only magnitude. Okay, for them we will not consider the term direction. We will consider only magnitude. Now, first we are taking what is a position vector. Okay, and what is a displacement vector. Okay, displacement vector. Now, suppose P is a point. Okay, P is a point with coordinates x and y. Okay, position vector is the position of a vector or a point, with reference to origin of the coordinate system. With reference to origin of the coordinate system. So for point P, if we want to write it as position vector, we will write OP vector. Okay, OP vector is position vector of point P. Similarly, if we take a point A, then the position vector will be OA vector. If we will take a point B, it will be OB vector, like that. Now we are coming on displacement vector. Suppose a point had changed its position in a certain time interval. First it was position vector OP, then it is OQ. Okay, so displacement vector will be the vector PQ, because in time t, the particle P or the vector P or the point P has moved from P to Q. PQ vector is displacement vector, and PQ vector will be represented as OQ vector minus OP vector. Okay, so these are the terms position vector and displacement vector. Now
we will talk about, okay, we will talk about polar and axial vectors. Polar and axial vectors. Okay, polar vectors are those vectors which have a initial point or point of application. Which have a initial point or point of application. Whereas axial vectors are used in rotational motion. They are used in rotational motion. Okay. For polar vectors, we can give the example of, suppose, displacement or velocity or force, whereas for axial vectors, torque or angular momentum, etc. Right? Now, how a vector is represented? How a vector is represented? Vector is represented by a straight line with arrow head. With arrow head. Basically, the length of the line will represent the magnitude. The length of the line will represent the magnitude, whereas the arrow will give the direction. Arrow will give the direction. Okay? Suppose there is a straight road of length 40 kilometers. So when we will represent it in vector form, then we will take a suitable scale so that it can be represented on graph paper or simple plain paper, etc. Okay, we will take suitable scale for magnitude, and arrow will give the direction. Arrow will give the direction. Okay, if this is vector A, we will write like this. But if this is vector A, again it will be like this. Don't represent like this. Don't represent like this. Okay? This you have to keep in mind. After this, we are coming on algebra of vectors, and in algebra of vectors, first we will take addition of vectors. We will take addition of vectors. So if two vectors are in same direction, okay, are in same direction, then for magnitude they will be added. For magnitude they will be added. Okay, and if they are in opposite direction, then for magnitude they will be subtracted. Okay, they will be subtracted. When you are subtracting at that time, okay, it might be possible you can subtract b vector minus a vector or a vector minus b vector. Whichever you will subtract, whichever the vector you will subtract, you have to change its direction. You have to change its direction. Okay. After this, we are coming on the most important part of vector addition. We are coming on most important part of vector addition. Okay. This is triangle law of vector addition. There are certain quantities which have both magnitude and direction, but they are not taken as vector because they don't satisfy this triangle law of vector addition. Particularly, the most important or most common example is
current. The most common example is current. Okay. Now suppose there are two vectors. Okay. They are acting at some angle theta. Okay, acting at some angle theta. This is called the initial of the vector. This is the final or terminal. Okay, or in some cases it is tail, it is head. Okay, it is initial, it is final or terminal. For triangle of vector addition, what we will do, हम a वेक्टर ड्रॉ करते हैं और b के इनिशियल को a के टर्मिनल पर रखकर b के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं. ओके, b के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं. नाउ व्हाट वी विल डू, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है ना, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. मान लो ये O है, ये A है, ये B है. ओके, तो A plus B means OA plus AB. Okay, OA plus AB. Now, regarding the direction of the sum, okay, regarding the direction of the sum is called resultant. Sum is called resultant. So, if A to B, we are moving anti-clockwise, then the direction of the resultant will be clockwise. It will be clockwise, just opposite. Okay, so OA plus AB will be OB. Will be OB. ठीक है, बहुत सिंपल वे में, अगर जिनको समझ में नहीं आता तो बहुत आसान काम कर सकते हो. ये बीच का जो अल्फाबेट है उसको हटा दो. ठीक है ना, इसको तो हटा दो, केवल फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट ले लो. ओके, दिस इज योर resultant, right? This is triangle law of vector addition. Okay, when we will define this law, then the statement is like this. If two vectors are represented by two sides of a triangle taken in a order in magnitude and direction, then their resultant will be represented by, in magnitude and direction, the third side of the triangle taken in opposite order. Okay, this will be the statement of triangle law of vector addition. This is very, very important. Okay, now we are coming on second method, that is parallelogram law. Okay, parallelogram law of vector addition. Okay, parallelogram law of vector addition. There is slight difference, okay, between application of triangle law and parallelogram law. Here what we will do, okay, we will join the initials of A and B. We will join the initials of A and B, and then we will complete a parallelogram. Then we will complete a parallelogram like this. Then according to this law, the diagonal of the parallelogram will be the resultant. The diagonal of the parallelogram will be the resultant. Okay, so the statement goes like this. If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then the sum or resultant of these two vectors will be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the join of the point. Okay, when this angle is theta, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. मान लो ये A है, B है, C है, D है. तो इन
right angled triangle. Okay, OBC. OC square is equal to OB square plus BC square. Okay, OB means OA plus AB plus BC square. Okay, this is B, so this is B according to trigo. Okay, this is B sin theta and this is B cos theta. Okay, to find BC and AB, we have taken the help of trigonometry of class 10th. You have learned it in class 10th. Okay, and also in class 12th, in 11th, in maths, you have this chapter. Okay, now just open it. OA square plus AB square plus 2OA AB plus BC square. Now put the value. OA is A square, AB B cos theta whole square, 2 A B cos theta plus B sin theta whole square. So it comes out R square equal to A square plus 2AB cos theta plus B square common cos square theta plus sin square theta. Okay, so R is under root A square plus B square plus 2AB cos theta. Now it is a vector. This is the only magnitude. This is the magnitude of resultant. ठीक है, ये हमारा क्या है? Magnitude of resultant. ठीक, अब हमें डायरेक्शन चाहिए. एंगल, डायरेक्शन के लिए एंगल तुम ए बी किसी के साथ ले सकते हो. मान लो मैंने ए के साथ लिया, तो मैं फॉर डायरेक्शन अब मैं tan अल्फा निकालता हूं. फॉर डायरेक्शन अब मैं tan अल्फा निकाल रहा हूं. ओके, तो tan अल्फा हो गया हमारा BC बाय OB. दैट मीन्स B sin थीटा बाय OA प्लस AB. तो B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा. ओके, हम सबसे आसानी से ऐसे याद रखते हैं कि जिस वेक्टर के साथ एंगल लेंगे, जैसे मैंने ए के साथ लिया है, तो फॉर्मूले में केवल एक बार आएगा और उसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं होगी. पर जो दूसरा वेक्टर होगा वो न्यूमरेटर में साइन के साथ होगा और डिनोमिनेटर में कॉस के साथ होगा. ओके, तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो. ओके, सो दैट कि तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है ना. तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं. ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं. क्वेश्चन में कह रहा है टू वेक्टर्स both equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of either. Okay? कहता है find the angle between the vectors. क्वेश्चन से क्लियर है कि यहां पर ए बी और आर तीनों के तीनों इक्वल है. दोनों वेक्टर इक्वल हैं और उनका रिजल्टेंट भी उनमें से किसी के भी बराबर है. तो ये दोनों खुद ही बराबर हैं. तो यहाँ पर ए बी और आर तीनों इक्वल हो गए.
हम अपने फॉर्मूले को यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉस थीटा, हमने सब जगह ए पुट कर दिया है। ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये भी कट गया। ओके, तो माइनस 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है ना। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को लेते हैं, क्वेश्चन को ले रहे हैं जिसमें एंगल भी इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें कि एंगल भी इन्वॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन हमारा है टू फोर्सेस इक्वल टू P and 2P act on a particle, ओके। अब कह रहा है if the first be doubled, if the first be doubled and the second is increased by 20 and the second is increased by 20, the direction of resultant remains unaltered, ठीक है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ओके, देखो जो फोर्सेस हमारे P एंड 2P हैं, तो फर्स्ट केस में मान लो सपोज करो हमने, ठीक है ना, जो वेक्टर्स का एंगल लिया है अल्फा, वो मान लो मैंने P के साथ लिया है, वो सपोज करो मैंने P के साथ लिया है, ठीक है। तो मैं tan अल्फा कितना लिखूंगा, 2P साइन थीटा, ये एंगल हमारा पूरा थीटा है, 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कॉस थीटा। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, हम P की जो वैल्यू है उसको डबल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हमने P की वैल्यू को डबल कर दिया है और इसको 20 से बढ़ा दिया है। जो रिजल्टेंट हमारा है, जो हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है, उसके एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है, उसके एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है अब ये tan अल्फा हो गया 2P प्लस 20 साइन थीटा अपॉन 2P प्लस 20 कॉस थीटा। ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो हम इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं, 2P प्लस 20 साइन थीटा अपॉन 2P प्लस 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2P साइन थीटा P प्लस 2P कॉस थीटा। ये हमने इसको लिख दिया है। क्लियर है। तुमने छोटी क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा हुआ है कि अगर A/B इक्वल टू C/D है तो ये A माइनस C अपॉन B माइनस D होगा। हम इस पर उसको लगा देते हैं। क्लियर है। इसको हम यूज कर ले रहे हैं। तो मेरे पास बच गया 20 साइन थीटा और P प्लस 20 कॉस थीटा, P प्लस 20 कॉस थीटा। ये हमारे पास बचा रह गया। ओके,
ये किसके इक्वल है, 2p साइन थीटा p प्लस 2p कॉस थीटा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो तो p की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये 2p है, यहाँ पर ये 20 है, ठीक है ना। p सेम है, उसी तरह से देखो यहाँ ये 20 है, यहाँ पर ये 2p है। तो जब हमने कंपेयर किया तो p की वैल्यू 10 आ गई है, ठीक है ना। कंपेयर करने पर p की वैल्यू 10 आ गई। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। अब हमें कहता है सम ऑफ टू फोर्सेस इज 18 न्यूटन। हमें कह रहा है सम ऑफ टू फोर्सेस इज 18 न्यूटन, ओके, and the resultant is 12 Newton, and the resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle 90 degree with a smaller force, find the two forces. Okay, find the two forces. ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सपोज कर लो, लेट कर लो P and Q be the forces, क्लियर है, P and Q be the forces, और मान लो कि P छोटा है, ठीक है ना, P हमारा छोटा है, ओके। तो अब ये देखो tan 90 डिग्री, ठीक है ना। रिजल्टेंट 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, छोटे वाले के साथ, ठीक है ना। रिजल्टेंट किसके साथ बना रहा है, छोटे वाले के साथ, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह से हो जाएगा। मैंने बताया था कि जिसके साथ एंगल बनता है रिजल्टेंट का वो हम केवल एक बार लिखते हैं, ठीक है ना। tan 90 अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब ये पार्ट हमारा 0 के बराबर है, ठीक है ना। P प्लस क्यू कॉस थीटा 0 के बराबर है, इसका मतलब Q कॉस थीटा माइनस P है, ठीक है ना। Q कॉस थीटा हमारा माइनस P है, क्लियर है। tan 90 अनडिफाइंड होता है, इसलिए P प्लस क्यू कॉस थीटा हमारा 0 है, ओके। अब हम सेकेंड पार्ट पर आ रहे हैं। हमें कहता है कि सम 18 है, P प्लस क्यू 18 है, तो इसका मतलब P हमारा जो है वो 18 माइनस क्यू है, क्लियर है। वो हमारा 18 माइनस क्यू है, और रिजल्टेंट कितना है 12, रिजल्टेंट कितना है 12, ठीक है। तो इसको यूज कर लो, आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तुम इसे यूज कर लोगे। अब हम अपने अकॉर्डिंग पुट कर रहे हैं, ये 12 स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा। क्यू कॉस थीटा कितना है, माइनस पी, ठीक है ना। क्यू कॉस थीटा कितना है, माइनस पी, ठीक है। और क्यू को हम लिख देते हैं 18 माइनस पी, ये इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे, तो p की वैल्यू 5 आ जाएगी, p की वैल्यू 5 आएगी और q की 13 आएगी, ठीक है ना। q की 13 आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम मुझे, ठीक है ना, पूछ सकते हो बड़े आराम से, लिंक गिवन होता है हर वीडियो में, ओके। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि हम पैरेललोग्राम लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पर, ठीक है ना। अब हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं और आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पर, ओके। मल्टीप्लीकेशन,
ठीक है। अब देखो, अगर सपोज करो ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, तुम्हें पता है OP पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। मान लो इसे हम R से डिनोट करते हैं, हम इसे R से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मान लो Q है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तुम्हें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। अब देखो हम अगर ट्रायंगल लॉ लगाएं, ठीक है ना, हम ट्रायंगल लॉ लगाएं तो OP वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर, क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो वेक्टर है पर ये x है और ये y है, क्लियर है। तो हम इसे वेक्टर कैसे बनाएंगे, हम इसे वेक्टर कैसे बनाएंगे, तो इसे वेक्टर बनाने के लिए हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये i कैप एंड j कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स, x एक्सिस के अलॉन्ग i कैप, ठीक है, x के अलॉन्ग i कैप, y के अलॉन्ग j कैप, और अगर 3D है तो z के अलॉन्ग k कैप, ठीक है। अब यहां पर हम छोटा सा ये देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, ठीक है ना। ओके, तो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्लियर है। तो ये बन जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर, ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर, क्लियर है। ओके, तो ये देखो हम R वेक्टर को xi प्लस yj प्लस zk लिखेंगे फॉर 3D, ठीक है ना। हम किसी भी वेक्टर को हम xi प्लस yj प्लस zk के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर, ठीक है ना, कोई पॉइंट है, अगर सपोज करो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 - 3 4 है, क्लियर है, P के कोऑर्डिनेट्स 2 - 3 4 है। ओके, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, 2i - 3j प्लस 4k, और समझ गए। यहां पर हमने, ठीक है ना, कोई एक्सिस वगैरह के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं किया है, सिंपली तुम्हें ये सिखलाया जा रहा है कि अगर कोई पॉइंट गिवन है तो तुम उसे वेक्टर में कैसे लिखोगे, ठीक है ना। ये मेरा ए वेक्टर हो जाएगा, क्लियर है। अब जैसे मान लो, ठीक है ना, हम R वेक्टर को, जो मेरा इतना है xi प्लस yj प्लस zk, इट इज मल्टीप्लाइड बाय, ओके, इट इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर m, ठीक है। तो ये mr वेक्टर कितना हो जाएगा, mxi myj mzk, ठीक है। अगर मान लो r वेक्टर मेरा 2i - 3j प्लस 4k है, ओके, तो अगर मुझे 2r वेक्टर निकालना है तो ये 4i - 6j प्लस 8k हो जाएगा, बात समझ गए। वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं, ठीक है ना, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल या कोलिनियर हैं तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं एबीसी वो प्रोपोर्शनल होंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं एबीसी वो प्रोपोर्शनल होंगे। अब हम, ठीक है ना,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है ना। अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स लेते हैं। सपोज करो ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स दो मेथड से किया जाता है। पहला मेथड है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये मेरा पहला मेथड है। तो A डॉट बी हम ऐसे लिखते हैं। तो ये होता है बाय डेफिनेशन A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से तुम कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, A डॉट बी अपॉन A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इस मेथड में या इस डेफिनेशन में हमें ऑलवेज एंगल की जरूरत होगी, ठीक है ना। और अगर मान लो एंगल गिवन नहीं है तब हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो उसके लिए हम इसी को यूज करते हैं, पर एक छोटी सी चीज सीखते हैं। अगर मान लो मैं आई डॉट आई करूं इस डेफिनेशन से, तो मैं क्या लिखूंगा, आई मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना। सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 आ गया। तो उसी तरह से जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा, ठीक है। दूसरी चीज जो हम सीख रहे हैं, अगर मान लो मैं आई डॉट जे निकालूं, मैंने आई मैग्नीट्यूड लिखा, जे मैग्नीट्यूड लिखा, कॉस 90। आई और जे के बीच का एंगल 90 होगा, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो ये मेरा 1 इंटू 1 इंटू 0, ये 0 हो गया। तो उसी तरह से जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, ये 0 होंगे, ठीक है। तो अब हम इसे यूज करते हैं, और मान लो मैंने, ठीक है ना, R1 वेक्टर लिया, A1i B1j C1k, और मैंने R2 वेक्टर लिया A2i प्लस B2j प्लस C2k। अब मैंने R1 डॉट R2 निकाला इसकी हेल्प से, तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। अब देखो अगर मैं मैग्नीट्यूड R1 निकालूं तो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और अगर मैं मैग्नीट्यूड R2 निकालूं तो अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। कॉस थीटा मेरा ये था, तो कॉस थीटा देखो हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक, यह हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में हम डॉट प्रोडक्ट के लिए इस रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर केसेस में हम इसको यूज करेंगे, ओके। और जब कॉस थीटा निकालना होगा तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। मेन बात ध्यान रखना है कि आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा और के डॉट के 1 होगा, ठीक है ना। और अगर हम अपोजिट ले लेंगे, कोई भी दो डिफरेंट ले लेंगे, अपोजिट मतलब डिफरेंट, अगर हमने कोई भी दो डिफरेंट ले लिया तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ओके। अब देखो अगर हम, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है ना, हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात करें, तो सबसे पहला है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा, ठीक है ना। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा।
और दूसरी चीज है ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। या तुम ऐसे लिख लो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जब तुमने ऊपर से एरो हेड हटा दिया है तो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। ओके, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूज होता है सबसे ज़्यादा, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0. ओके, इफ a vector is parallel to b vector then a dot b is simply ab, magnitude a into magnitude b. Okay, here I haven't written this symbol. ओके, अगर मैं डॉट लिख दूंगा, सिंपली सोच लो कि यू हैव टू मल्टीप्लाई ए एंड बी, ठीक है ना, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई ए एंड बी. ओके, वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन हियर, कहता है इफ ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, okay, find the angle between a and b, find the angle between a and b. क्लियर है? तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं. तो मैंने इसे देखो a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी डॉट a माइनस बी लिख दिया है, ठीक है. दोनों इक्वल है इसलिए इक्वल से मल्टीप्लाई किया, कोई अंतर नहीं हुआ. इसका मतलब ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ठीक है. इसका मतलब ये हो गया 4a डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना. और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या थी, a डॉट बी 0. इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना है, 90, ठीक है ना. थर्ड प्रॉपर्टी यूज हो गया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है ना. और यहां पर हम देख रहे थे कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है. ओके, अब देखो अगर हमें कहता है, ठीक है ना, हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट a vector equal to 4i minus lambda j plus 2k and b vector equal to I plus 2j minus 6k are perpendicular. क्लियर है? तो फिर से हमें पता है परपेंडिकुलर है तो a डॉट बी 0 है, तो बिकॉज a perpendicular on b, therefore a dot b equal to 0. So a1 a2 is 4, b1 b2 is minus 2 lambda, b1 b2 is minus 2 lambda, and c1 c2 is minus 12 equal to 0, right? That means minus 2 lambda is equal to 8, so lambda equal to minus 4. Your lambda is minus 4. Okay, so again this question was also the application of
थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना. दिस क्वेश्चन वाज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी. ओके, नाउ इफ it is given that, okay, in a question it is given that a plus b is equal to c and a square plus b square equal to c square. हमें कहता है find the angle between a and b. Find the angle between a and b. This is our question. ओके, एक बार फिर से हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी यूज किया, a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू c डॉट c. सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर लिया है. इसका मतलब हो गया, ये आ गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू a डॉट b इज इक्वल टू c स्क्वायर. और हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. इसका मतलब हो गया 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थर्ड प्रॉपर्टी यूज हो गई. क्लियर है. तो जो ये थर्ड और फोर्थ, सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में. अब हम आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है ना, दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के सेकेंड मेथड पर. दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के सेकेंड मेथड पर. ये है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, ये है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना. ये है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. तो हम इसे क्रॉस की तरह लिखते हैं और बाय डेफिनेशन ये है ए बी साइन थीटा एन कैप. जो ये एन कैप है, इसे हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना. हम इसे नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं. मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है, ठीक है ना. नॉर्मल और परपेंडिकुलर का डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, वो तो मैथ्स में सीखोगे. फिजिक्स में भी हम जब आगे के चैप्टर्स करेंगे जहाँ ये सिचुएशन आएगा, तब हम बहुत डिफरेंस लेंगे कि कैसे नॉर्मल और कैसे परपेंडिकुलर है. ओके, मेन बात यहाँ पर यह है कि ए बी और ए क्रॉस बी, वेक्टर ए वेक्टर बी और ए क्रॉस बी तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना. अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये ए क्रॉस बी है. ये ए है, ये बी है, तो ये ए क्रॉस बी है, ठीक है ना. ए बी, वेक्टर ए वेक्टर बी और ए क्रॉस बी तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है. हम एन कैप की डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना. हम इसकी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं. ओके, एन कैप की डायरेक्शन क्लियर है. जनरली हमें एन कैप क्या किसकी डायरेक्शन बतलाएगा, ए क्रॉस बी की, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी का डायरेक्शन तो थीटा से हमें पता है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बतलाएगा, ठीक है ना. अगर हम ए और बी को बोर्ड की प्लेन पर लेंगे या पेपर की प्लेन पर लेंगे, तो ए क्रॉस बी बोर्ड या पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो बाहर की तरफ हो चाहे वो अंदर की तरफ हो, ठीक है ना, चाहे वो बाहर की तरफ हो चाहे अंदर की तरफ हो. ओके, अब देखो हम इस डेफिनेशन का यूज करते हैं आई क्रॉस आई निकालने के लिए, ठीक है. आई कैप लिखा, साइन कितना 0 डिग्री, ठीक है ना. साइन कितना 0 डिग्री. सेम वेक्टर है, एंगल 0 है. साइन 0 कितना होता है 0. तो आई क्रॉस आई कितना हो गया 0. तो उसी तरह से जे क्रॉस जे 0 होगा, ठीक है. अगर हम के क्रॉस के करेंगे वो भी 0 होगा, ठीक है ना, वो भी हमारा 0 होगा. ओके, पर अगर सपोज करो हम
आई क्रॉस जे करते हैं, आई कैप जे कैप, ठीक है, साइन 90 एन, 1 इंटू 1 इंटू 1 एन कैप। तो आई और जे का एन कैप क्या होगा, के कैप, ठीक है ना। आई और जे दोनों पर परपेंडिकुलर कौन है, के कैप। तो आई क्रॉस जे हमारा हो जाएगा के, ठीक है। तो ज्यादा आसान के लिए हम ये ट्रायड मेथड यूज करते हैं। ये हमने आई लिया, ये जे लिया, ये के लिया, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, लाइक दैट, ठीक है ना। आई क्रॉस जे के, अगला जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। पर अगर हम अपोजिट ले लें, ठीक है ना, अगर हम अपोजिट लें जे क्रॉस आई तो माइनस के, अगर हमने जे क्रॉस आई लिया तो माइनस के, आई क्रॉस के लिया माइनस जे, लाइक दैट, ठीक है ना। अगर मैंने जे क्रॉस आई लिया तो ये माइनस के है, ठीक है। अगर मैंने आई क्रॉस के लिया तो माइनस जे है, और अगर मैंने के क्रॉस आई लिया है तो ये है जे, ठीक है। अब एक बार फिर से इस मेथड में प्रॉब्लम है एंगल का, तो हम एंगल से छुटकारा पाएंगे, ठीक है ना। हम एंगल से छुटकारा पाएंगे, और एंगल से छुटकारा पाने के लिए हम इसमें, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। मान लो मेरा r1 वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k है, और r2 वेक्टर a2i b2j c2k है, ठीक है ना। ये मेरे r1 और r2 वेक्टर है। हमें कहता है ओके r1 क्रॉस r2 निकालो, तो हम इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, आई जे के। अब ये ध्यान रखना, अगर r1 पहले होगा तो r1 के कोफिशिएंट पहले लिखना, अगर ये r2 क्रॉस r1 होता तो r2 के कोफिशिएंट पहले लिखना। बस तुम ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर r1 क्रॉस r2 है या r2 क्रॉस r1 है, क्लियर है। अकॉर्डिंगली तुम कोफिशिएंट लिखोगे, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन तुम क्लास 10th में सीख ही चुके हो, c2b1 माइनस b2c1, जे के लिए सिंबल बदल देना, c2a1 माइनस a2c1, के का सिंबल कोई चेंज नहीं होगा, b2a1 माइनस a2b1, ठीक है ना। जब आई लिया c2b1 माइनस b2c1, जे लिया माइनस में c2a1 माइनस a2c1, और के लिया तो, ठीक है ना, b2a1 माइनस a2b1। कई बुक्स में यहाँ पर प्लस लिखा होता है तो वो इसको उल्टा लिखते हैं, तो कहीं तुम एग्जाम में उल्टा लिखना भूल ना जाओ, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि तुम ये सिंपल काम याद रखो कि जे का साइन माइनस कर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कोई जे का साइन ही नहीं होगा, तो बस तुम्हें सोच लो कि आई के लिए प्लस लिखना है, जे के लिए माइनस, और के लिए प्लस लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा मेथड आया सॉल्व करने का, ठीक है ना। अब देखो हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पर आ रहे हैं। तो सबसे पहला है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक्चुअली में ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, ठीक है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो है ए क्रॉस ए जीरो होगा, ठीक है ना, ए क्रॉस ए जीरो होगा। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है,
देन ए क्रॉस बी 0 होगा। ठीक है ना, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी हमारा 0 होगा। उस केस में ए क्रॉस बी 0 होगा। ठीक है ना, ओके। हम क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन vectors a equal to 2i plus j minus k and b vector equal to i plus 2j plus 2k। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है ना, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो हम पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है ना, हम पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। आई लिखा, जे लिखा, के लिखा। अब इनके कोफिशिएंट्स लिख दो, 2 1 -1 1 2 2। तो ये हो गया मेरा आई, देख लो 2 + 2 कितना हो गया 4। ठीक है, 2 माइनस प्लस। ठीक है ना, फॉर्मूले में हमारा माइनस था, मैंने हटा दिया है। ओके, जे तुम्हें याद ही है माइनस में लिखना है, जे हमें माइनस में लिखना है। 4 + 1 तो 5 हो गया। अब आ जाओ के पर, के फिर से प्लस है। 4 - 1 तो कितना हो गया 3। तो ये आ गया मेरा 4i - 5j + 3k। ठीक है ना, तो a क्रॉस b की जगह हमने ये लिख दिया 4i - 5j + 3k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 16 25 41 और 9 50। 50 का √50 का मतलब कितना हो गया 5√2। ठीक है ना, तो 5√2 ये आ गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। ठीक है ना, ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। ओके, अब देखो हमें कह रहा है क्वेश्चन में, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, प्रूव दैट, ओके, prove that A क्रॉस B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A डॉट B का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करने कह रहा है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं LHS से। ठीक है ना, LHS मेरा है A क्रॉस B का स्क्वायर। क्लियर है, ये मेरा LHS है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया AB साइन थीटा का स्क्वायर। एन कैप तो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई अंतर ही नहीं होगा। इसका मतलब हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तो हम ऐसे ही रख लेते हैं बेटा, इसे लिख दिया AB कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया मेरा A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A डॉट B का स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया। बात को फॉलो कर रहे हो? ठीक है ना, तो इस तरह से एक बार हमने पूरा का पूरा वेक्टर रिवाइज कर लिया है। ठीक है ना, आई विल एंजॉय, ओके ओके, आई विल एंजॉय कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, बार बार व्यू करें। ओके,
Bye to all.